Rajan sir, please accept our gratitude. Because of you all's teaching, Ashmi ma'am's teaching, we are able to conduct these sessions. So very grateful to you, Rajan sir. Yes. I think I didn't hear you actually. I said we are so very grateful to you and Ashmi ma'am. Because of you all, we are able to make a small difference in somebody, is even more number of people's lives, sir. Thank you so much for the teachings. I mean, couldn't have even thought of starting such sessions without you people's guidance. It is so true. Actually, a lot of people have started their own sessions. Yes. देखिए, the मकसद हमारा जो सीखने का है, whatever we have learned here is we have to give it back to other people. And I'm really so proud of you all three कि आप लोगों ने ये session शुरू किए हैं, and it is amazing. Very nice. Thank you so much. Thank you. Okay, so how do we start? So who's starting the session? Sir, we'll just do a small invocation. Okay, fine. And only for people who don't know, only I think there may be 2 or 3 people who have not met you. Rajan sir is our mentor. He's the guru of manifestation for us. 2 years back, he was like us. Nothing. We were all in the same boat. But sir, apne practices se and apne manifestation se, he's become our guru today. And thank you so much. I think isse bada introduction aapka main aur kya do. Like, and he does this only for the love of people. It is not his. Facebook पे चल रहा है वो. Okay. There are about 100 people and 100, 200, 300 people are on Facebook. Oh, wow. So he's not a motivational speaker by profession. Just out of love, he has become this. So you're muted, sir. Out of passion. Out of passion and love for us, sir. Thank you so much. So Shalini will just do a very small invocation, sir, before prayer. Please. Yes, and then you take over from there, sir. Thank you. Let us all sit straight with our back straight. Close your eyes. Do some deep bellow breathing, deep inhalation and deep exhalation. Gather your thoughts. Concentrate on your breath. To the Supreme God, to the Divine Father Mother, हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको आह्वान करते हैं ताकि आपकी blessings रहे इस session में. Bless us all so that we understand the teachings being taught here, so that we can implement each and everything in our life and remember it the most when we need it. Thank you, God, for your energies. Thank you for protecting us, helping us, guiding us at all point of time. Lord God, we are so very grateful for you. Thank you, thank you, thank you in full faith. Thank you so much. Vivek ji, you are there. I'd just like Rajan sir, you to introduce yourself to Rajan sir here. Namaste, sir. I'm Vivek, a pranic healer practicing from last 8 years, sir. I'm privileged to be a part of this group. He's our mentor in pranic healing, sir. He's been with us since the start. He's our guru in pranic healing, and we have so much gratitude to pranic healing that has raised us to our spiritual levels that we could even understand your sessions. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Vivek ji. Yes. So actually, pranic healing is also a part of लॉ ऑफ नेचर. मतलब जो प्रकृति के जो नियम है उसमें से ही जो हमारे जो पूर्वजों थे उन्होंने ये प्राणिक हीलिंग का साइंस समझ में आया है. सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी. अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये क्या बातें हैं. मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में सिंपल तरीके से कुछ सिखाने वाला हूँ. अब जो मुझे समझ में आया है
ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी ये प्रोग्राम अटेंड किया है 5 तारीख से लेके, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया है. इज एवरीबडी क्लियर ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इज देयर एनीबडी जो पहली बार, यू कैन जस्ट टाइप, यू नो, इज देयर एनीबडी हु डजंट अंडरस्टैंड कि थोड़ा समझ में कम आया है? गिर जा रहा है कान से ना. Is everybody clear on this? What is law of attraction? हटा दो. I'll mute everyone so that you know. Okay, I am going to mute all. Okay, right. So I understand. अब 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को समझ में आ गया है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है. ओके, अब मैं आपको एक बार और उसको रिवाइज करता हूं. I will just revise. What is law of attraction? Law of attraction is the biggest gift from the universe. भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है ह्यूमन बीइंग्स को. इंसान को सबसे बड़ा गिफ्ट अगर मिला है तो वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. भगवान ने हम सबको एक मैग्नेट बनाया है. भगवान ने हम सबको एक मैग्नेट बनाया है. एंड वी अट्रैक्ट. We attract, human beings attract, and we attract by our thoughts, yeah, and feelings. हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उससे हम अट्रैक्ट करते हैं. खत्म. राइट? अब शुरुआत किसने की? अगर आप बोलोगे कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत किसने की, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे बढ़िया समझाया है गौतम बुद्ध ने. सो नाउ इट बिगिंस फ्रॉम गौतम बुद्ध. सो काइंडली डू नॉट डाउट, काइंडली डू नॉट चैलेंज गौतम बुद्ध. राइट? आर वी ऑन दिस सेम पेज? मतलब आपको समझ में आ रही है कि मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो जो गौतम बुद्ध ने बताई थी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉलो की थी, जो आज रविशंकर जी भी कह रहे हैं, बीके शिवानी जी कह रहे हैं, मदर टेरेसा ने उसको इंप्लीमेंट किया. एंड एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल सक्सेसफुल पीपल हैव नोन दिस टेक्निक. अब अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इफ यू हैव ड्रीम्स इन योर लाइफ, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रकृति का नियम. इस लॉ ऑफ नेचर को आपको समझना बहुत जरूरी हो गया है. अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप कितना भी हड़बड़ी कर दो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. कभी कभी तो जो है वो भी वापस ले लेता है. आपने देखा रहेगा काफी लोगों को, दे वर वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच, बट आफ्टर सम 1 जनरेशन 2 पूरा पैसा चला जाता है. डू यू नो एनीबडी लाइक दैट? आप जानते हैं ऐसे कोई लोगों को? द रीजन इज people have not understood the laws of nature. अब आप यहाँ पर, मैं 8 माले पे बैठा हूं, यहाँ से नीचे उड़ी मारोगे 100% नीचे गिरने वाले हो, क्योंकि प्रकृति का नियम है. उसी तरीके से आपने जितना पैसा कमाया, धन कमाया, दौलत कमाई है, आपकी गुड हेल्थ, आपके पास बहुत बढ़िया हेल्थ है आज, कल समझो कुछ खराब हो जाती है, तो उसकी वजह, वन ऑफ द रीजन इज दैट यू हैव गॉन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. द मोमेंट यू गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, आप अगर प्रकृति के नियम के अगेंस्ट जाओगे तो 100% गिरने वाले हो, हाथ पांव तोड़ने वाले हो, शायद राम राम भी हो जाओगे. तो मैं ये बता रहा हूं कि क्यों ना हम इस सिंपल चीज को समझ ले. में नंबर 1, गौतम बुद्धा सेड, व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम. अब इस एक लाइन को अगर आप समझ लोगे तो आपकी जिंदगी लाइक दिस, इट विल बिकम अ रॉकेट. क्या बोला उन्होंने? जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाओगे. Whatever you think, you will become. इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचोगे मैं दुखी हूं तो क्या बन जाओगे? अगर आप सोचोगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूं, तो क्या बन जाओगे? अगर आप सोचोगे कि मेरे सर में दर्द है तो क्या बन जाएगा? हे मां मर गया, मर गया, हे मां मर गया. अरे तुम क्या बोल रहे हो?
ऊपर जाने की तैयारी क्यों कर रहे हो? गौतम बुद्ध ने बोला था, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। सिंपल साइंस को अब हम इसको यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? अब हम अच्छा बोलेंगे, वाओ टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। ओके एवरीवन, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एवरीबॉडी से टू योरसेल्फ, आज तो मजा आने वाला है, आज तो कुछ बहुत बढ़िया सीखने वाले हैं। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। जैसे बोलूंगा, जैसे सोचूंगा, वैसे होने वाला है। मैं कोई ऑफिसर को पहले मिलने जाता था तो पहले घबर जाता था। पहले मैं क्या वो साला बहुत खड़ूस है, बदमाश है, वो मेरा काम नहीं करेगा। और जब अंदर जाता था तो मेरा काम नहीं करता था। मुझे गौतम बुद्ध की बात किसी ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। अब जाके जब समझ में आया तो मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना है, आईएएस ऑफिसर के पास जाना है, पॉलिटिशियन को मिलना है, तो मैं पहले से ही अपना माइंड को यूज करता हूँ। क्या बढ़िया आदमी है, थैंक यू, मेरा बहुत बढ़िया काम हो गया। मैं उसको ग्रेटिट्यूड देता हूँ, बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छा इंसान है, मेरे सब काम कर दिया उसने, सब मेरी बातें मान ली, एंड थैंक यू सो मच। मैं ऐसे करके एवरी टाइम इनवेरिएबली विदाउट फेल आई डू दिस प्रैक्टिस। नॉलेज बहुत है, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। अब मैं आपको आज बता रहा हूं, हम जो हमारी टीम है, जैसे मैं हूं, अश्विन मैम है, सरिता जी हैं, शालिनी, विवेक जी, ये हमने कुछ ना कुछ सीखा है, हमें कुछ जबरदस्त फायदे हुए। मुझे तो बहुत ज्यादा फायदे हुए। तो हम चाहते हैं कि ये माइंड की टेक्निक्स, ये जो चीजें हैं, आप लोग सब सीख लो और अपनी अपनी जिंदगी को संवार दो। The reason is we are all born to live an amazing life. एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हम। ये दुखी होने के लिए, हे राम मर गया, गरीबी, बीमारी, बैड रिलेशनशिप, इसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसको खराब लगाना, जजमेंट, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाता है? जजमेंट। हम लोगों को जज करते रहते हैं, नहीं इसमें ये बदमाश है, साला चीटर है, कुछ ना कुछ पक्का इसको कुछ काम है, इसके लिए मेरे पास आया। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप अगर अच्छे इंसान हो तो अच्छे लोग आपके पास आएंगे, सिंपल है। मेरे साथ तो, मेरा तो बैड लक ही खराब है। जो आदमी ऐसा सोचता है, बोलता है, वो क्या बन जाएगा, उसका नसीब खराब कर देगा। नसीब अच्छा करना, बुरा करना मेरे हाथ में है भाई। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। पहला स्टेटमेंट बोला, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सेकंड स्टेटमेंट गौतम बुद्ध का था, वॉट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। अब आपको फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत टाइम क्या होता है, हम मुंह पे बहुत तारीफ करते हैं, अरे क्या मस्त, क्या बढ़िया बढ़िया मस्त खाना है, अंदर से बोला बेकार खाना है। अंदर से क्या है? योर फीलिंग्स, अंदर से कैसा लग रहा है? कैसा है? बढ़िया, मस्त, अंदर से फटी पड़ी है। क्या ठीक ठाक है? हाँ सर बढ़िया है। दुनिया भर का टेंशन है, कर्जा है, पैसे नहीं है, बीवी सुन नहीं रही है, बच्चे सुन नहीं रही है, हस्बैंड सुन नहीं रहा है, क्या मालूम इनको मेरे अंदर कैसे है? बढ़िया है। तो अंदर से आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है? आर यू फीलिंग हैप्पी? अब अगर इस ग्रुप में 100 लोग हैं और काफी लोग फेसबुक पे भी देखते हैं, अगर आप लोगों की कंप्लेन है कि आपका पति नहीं सुन रहा है या आपकी पत्नी नहीं सुन रही है, तो आप समझ लेना ये कॉमन प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा एनर्जी मत दो। मेरी भी नहीं सुनती है। इट वॉज अ जोक, शायद सुनती रहेगी तो अभी आ जाए, बट नो, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग द अदर वे। डोंट एक्सपेक्ट that everybody is going to listen to you or whatever. हमने हमारी एनर्जीज को अच्छी रखनी है, तो आज नहीं तो कल तो सुनने वाला ही है, पक्का। हैव दैट फेथ। Whatever you think you become, whatever you feel you attract,
And the third important stage is whatever you imagine, you create. अब हम इमेजिन क्या करते हैं, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, ये मेरे को लगता है बीमारी तो मेरे को मरने के बाद ही जाने वाली है, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब अभी आई कैन नॉट, पहले जैसी ताकत नहीं मेरे। अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं, पूरी शक्ति तो आपकी जुबान में थी, उसको आप मिसयूज करते जाते, मिसयूज करते जाते। मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं। एक अपनी कौन थी पार्टिसिपेंट, आई जस्ट लव दैट द टॉक्स, व्हाट आई रिमेम्बर, कैलकाटा की थी, उनका बच्चा सुनता ही नहीं था। तो जब मैं 2 साल पहले प्रोग्राम लेता था ना, मतलब पहले उसका बच्चे का और उसका चालू हो जाता। Who was that? कौन था वो? Sweetie from Pardon? Calcutta. Sweetie from Calcutta. करेक्ट, स्वीटी फ्रॉम कैलकाटा। अब उसने जैसे ही सर 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 ऐसा किया, 1-2 बार फोन पे भी बात हुई मेरी, ओ माय गॉड, उसको समझाया काफी। एंड यू विल नॉट बिलीव, आफ्टर अबाउट 1.5 years, 1-1.5 साल के बाद में, मतलब स्वीटी फिर गायब हो गई थोड़े दिन के बाद। वो 1-2 महीना काफी, मतलब हर टाइम स्वीटी का प्रॉब्लम चालू हो जाता था बच्चों को लेके। एंड आई वाज अमेज्ड, एक दिन अश्विन मैम के क्लास में स्वीटी बता रही है कि मैडम मेरे बच्चे के जैसा तो कोई बच्चा ही नहीं दुनिया में। एंड नाउ शी वाज प्रेजिंग हर चाइल्ड। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले बच्चा अच्छा हो गया है, बच्चा सुधर गया मेरा। तो मैंने ये बोला तेरा बच्चा नहीं सुधरा स्वीटी, तू सुधर गई है, बच्चा तो वो का वही है। Are you getting this? You can only change the person in the mirror. जो इंसान आपको आईने में दिख रहा है सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। बच्चा तो वो का वही रहेगा, हस्बैंड वो का वही रहेगा, पत्नी वो की वही रहेगी। पर अब हमने सोचना चेंज कर दिया है, हमारे फीलिंग्स अच्छे हो गए हैं, हमारे विजुअलाइजेशंस अच्छे हो गए हैं, इसके लिए दुनिया हमारी चेंज हो रही है। So this is all about law of attraction. Law of attraction is the ability. Law of attraction is the ability to attract anything into your life, the things that you want, by focusing on them. Law of attraction क्या है? एक तुम्हारी शक्ति है जिससे आप कुछ भी पा सकते हो। जैसे कि आपको मर्सिडीज गाड़ी लेना है, एक नया घर, बड़ा घर लेना है, डायमंड की ज्वेलरी लेनी है, 25-50 करोड़ स्टॉक मार्केट में कमाने हैं, वो आपके अंदर शक्ति है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट जस्ट बाय फोकसिंग ऑन इट। उसके तरफ फोकस करके आपको सब कुछ मिल सकता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, तो अब हम जो टेक्निक्स आपको सिखाते हैं अलग अलग तरीके से, वो सब टेक्निक जब आप फॉलो करोगे और फोकस करोगे तो आपको मिलता है। कितने लोगों को मिला है यहाँ पर कुछ तो भी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ, किसी को प्रॉपर्टी मिली, किसी को हेल्थ मिला, किसी को रिलेशनशिप अच्छे मिले, करियर मिला, किसी को एजुकेशन में कुछ तो फायदा हुआ। कैन समबडी प्लीज टाइप सो दैट अदर पीपल आर आल्सो इनसाइड। टुडे आई मैनिफेस्टेड रेन। देखो कुछ भी करते हैं, अब हम भगवान को भी चैलेंज कर देते हैं, बारिश भेज, तो फिर भगवान जो हुकुम मेरे आका ले बारिश। हम अब कुछ भी मांगते रहते हैं और हमको शर्म भी नहीं आती। क्यों शर्माए भाई, भगवान के बच्चे हम। आई ऑलवेज गेट यस, देखो देखो, people got car, somebody got house, somebody got good health, people got so many things. अब जब ये मैटर, अभी देखिए हम जैसे आज 100 लोग बैठे हैं ना, वैसे पूरे फॉरेन में हर सिटी के अंदर ऐसी क्लब्स हैं जहां लोग ऐसे अच्छे दिमाग वाले, पॉजिटिव थॉट्स वाले लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, शेयरिंग करते हैं, इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हमने भी ये शुरुआत कर दी है इंडिया में, काफी हमारे वर्कशॉप चलते रहते हैं, सबका फायदा होता है। आपको मैं मतलब मेरे मैनिफेस्टेशन की तो इतनी स्टोरीज हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्स ऑलवेज गिव्स मी व्हाट आई वांट। माय वाइफ इज राइटिंग टू मी, डायरेक्ट मैसेज है, आपको इधर नहीं दिखेगा। तो
मैंने जब छाया का फोन आता है मुझे मेरे मोबाइल पे, तो मैंने लिखा हुआ है अबंडेंस इज कॉलिंग। आपको चाहिए वो वॉलपेपर तो भेज दूंगा मैं। आप अपने मतलब हस्बैंड के नाम के आगे अबंडेंस इज कॉलिंग। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? कैन समबडी एक्सप्लेन हिंदी में? अबंडेंस, कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट इज अबंडेंस? प्रचुरता, प्रचुरता भाई, प्रचुर, ओके प्रचुर मतलब बहुत, मतलब भरपेट, बहुत खजाना, ऐसा भरपूर, बहुत ज्यादा, यस बहुत ज्यादा, अनगिनत, 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 मतलब अनगिनत खुशी, अनगिनत पैसे, अनगिनत हैप्पीनेस, इन्फिनाइट, यस इन्फिनाइट, बेइंतहाद, ओके। माय पॉइंट इज जस्ट फोकस योर थॉट्स ऑन हैप्पी थॉट्स। तो हमारा होता क्या है, अब हमको देखिए ये जो वर्कशॉप्स होती हैं उसमें पहला पॉइंट होता है सपने देखना, और मैं बता रहा हूं बड़े सपने देखना, क्योंकि हमारे पास दुनिया की जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो सब अवेलेबल हैं सपने पूरे करने के लिए, और हम आपको सिखाते रहते हैं धीरे 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 करके। ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप वाज सपने देखना। सपने देखने का मतलब होता है आपने अपने सपनों को लिखना है। हम सब ने लिखे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रही है ये बातें वो मतलब 1 to 1 भी किसी को भी फोन कर सकते हैं, सरिता जी को या व्हाटएवर, दे विल हेल्प यू आउट। बिकॉज व्हेन यू राइट डाउन योर ड्रीम्स, गोल्स और डिजायर, 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं वो आपका काम पूरा होने का। प्लीज अंडरस्टैंड, सिंपल टेक्निक है। अगर आप अपने सपनों को लिख लेते हो, सरिता जी आपने वो फेसबुक पे डाल दिया है क्या आपका, आई मीन अपना व्हाट्सएप ग्रुप में वो फेसबुक का लिंक? हाँ डाल दिया सर, सबको डाल सभी दिया। ग्रुप में डाल दिए? हाँ वो अलका जी को दे दिया था सर, उन्होंने सारे ग्रुप्स में डाल दिए। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, सो नाउ माय पॉइंट हियर इज पहले सपने देखना, पूरे करना, पहले सपने को लिखना। अब आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, गूगल करना। गूगल करके मैं आपको बता रहा हूं 42%, उन्होंने अमेरिका में काफी रिसर्च करते हैं, काफी सर्वे किए हैं, तो उनको ये समझ में आया कि भाई अगर आप लिख लेते हो कोई चीज को तो 42% चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना लिखें? आर यू गेटिंग दिस? लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूं। छाया जो भी करती है लिखती है। मेरे बच्चे की शादी हुई फरवरी 2022 में, हमने सब कुछ बढ़िया से लिखा था, 369 प्रैक्टिस किया हमने, हमारे साथ हमारे खुद अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखा। वी वर सो हैप्पी। मैं आपको बता रहा हूं मैंने मेरे बच्चे की शादी में बहुत मजा किया, कोई टेंशन नहीं था, एंड एवरीथिंग वेंट ऑफ फ्लॉलेस, एवरीथिंग वेंट फ्लॉलेस, सब कुछ बढ़िया हो गया। अब कैसे हुआ? यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी बढ़िया शादी की हमने। अब हमारा होता क्या था, इसके पहले जो मेरा बड़ा लड़का है शगुन, उसकी शादी में छाया इतना टेंशन में रहती थी, इतना टेंशन में रहती थी, खाना तक उसने 15-20 दिन के मतलब खाना ही आधा हो गया था उसका, फुल टाइम टेंशन में। अब होता है ना, घर में पहली शादी थी, जबकि माय पेरेंट्स आर आल्सो देयर, माय फादर इज वेरी एक्टिव, एवरीथिंग वाज देयर, पर प्रेशर में आदत थी ना प्रेशर लेने की। ये दिमाग को प्रेशर कुकर बना दिया हमने, ऐसा लेता रहता प्रेशर। अब हमने जब सोच बदली कर दी, हम हैप्पी होना चालू कर दिए, हम विजुअलाइजेशन यूज करना शुरू कर दिए। हमने विजुअलाइजेशन करते थे कि भाई बढ़िया शादी हुई, क्या लोगों ने तारीफ की, क्या खाना था, क्या सुंदर दिख रहे थे, क्या हमारे फोटोज आए, ये ऐसी हमने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले से। घर में इतना बड़ा इवेंट था भाई, शादी का छोटा मोटा इवेंट नहीं था। अब मैं तो जो है, अगर मुझे कल सुबह कोई कमिश्नर को कोई मतलब किधर भी मिलने जाना है तो मेरा प्रोग्रामिंग पहले से हो जाता है। मैग्निफिसेंट आउटकम जो हमको मैजिक बुक में सिखाया है, हम पहले से उसके बारे में सोचते हैं। बहुत बढ़िया मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आ गया। गो विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट, आपका काम होने वाला ही है।
और होता ही है. So that is the first step. So first step is law of attraction का मतलब होता है like attracts like. Like attracts like. So जैसे आप हो वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे, बस. अब मेरा ये कहना है कि मैं जैसा हूं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, पर मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे तो बीमार हूं. तो मेरा ये कहना है सबसे पहले स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर थॉट्स. जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होंगी, लोगों के लिए अच्छी नहीं होंगी, खुद के लिए अच्छी नहीं होंगी, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छी नहीं होंगी, तब तक आपके अच्छे काम नहीं होंगे. Are you getting this? So first step is to change your thoughts. Thoughts को कैसे चेंज करोगे उसकी भी टेक्निक्स है हमारे पास. Affirmations. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है अफर्मेशन. कैन समबडी टाइप दिस अफर्मेशन? अब अफर्मेशन जो वर्ड है वो मुझे समझने में 2-4 महीने लग गए थे, भाई ये होता क्या है. थैंक यू सो मच. यस, अफर्मेशन का मतलब होता है जो एक सेंटेंस या जो सेंटेंस हम बार बार बोलते हैं वो हमारा अफर्मेशन हो जाता है. अब अफर्मेशंस की टेक्निक ऐसी है कि इसको पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार बोलता है, नेगेटिव आदमी नेगेटिव सेंटेंस को बार बार बोलता है. अब अगर आपको बड़े सपने हैं, आपको सपने पूरे करने हैं, तो आपको जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ेगा. बार बार रिपीट. फॉर एग्जाम्पल, I am the winner. I am the child of God. I am fit, fine and healthy. Thank you for all the money given to me throughout my life. Thank you for the gift of life. And today I am alive. I am full of energy. I am a child of God. पैसे की तो बारिश हो रही है. Money is raining. Money is coming to me from all the direction. Money is coming to me regularly and frequently. Money is coming. पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है मेरे पास. I am blessed. I am blessed. Are you getting this? I choose happiness. I am happy. जब भी आप दुखी हो जाते हो, please say to yourself, I choose happiness. I am happy. एक डॉक्टर था, एमिल क्यो, फ्रांस का था. 150 साल पहले वो लोगों को ठीक करता था. कैसे पता है? एक सेंटेंस बुलवाता था उनसे, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर. एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर. एमिल कोयू, COULE उसका नाम है. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग है, आई माइट बी रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन, तो आपको स्पेलिंग बता दिया. अब वो डॉक्टर ये बताता था लोगों को कि ये पहले बिलीव करना शुरू कर दो. एवरी डे इन एवरी वे आई एम फीलिंग बेटर. आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा. ये मैं गोली ले रहा हूं, मेरे को बहुत बढ़िया गोली फायदा. देखो आपका बीमारी का इलाज हो रहा है. मैंने अच्छों का कैंसर की बीमारी, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस, दुनिया भर के पिंपल्स, ये वो हार्ट का, दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व हुए हमारे ग्रुप में. अब होता कैसे है? सोच से हम ठीक कर रहे हैं. बाय योर थॉट्स. सोच क्या करनी है? आई एम फीलिंग बेटर. आज तो मुझे बहुत अच्छा. भाई जब आपका तबीयत खराब होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, तब दुनिया भर के लोगों को फोन कर करके बता देते हैं, अरे यार आज तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 2 दिन से मेरा माथा खर रहा है, मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे को ताकत नहीं. ले सबको फोन कर करके बता.
करते हैं कि नहीं भाई? कितने लोग करते हैं? करते हैं ना? अब मुझे बताओ, जिस दिन आपको अच्छा लग रहा था, जिस दिन आपका सर नहीं दुख रहा था, कभी आपने किसी को फोन करके बताया कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या आज मेरा सर दर्द नहीं कर रहा है? हम नहीं बताते हैं, क्योंकि सिखाया नहीं ना किसी ने। जिस दिन नुकसान करके आए, 25-50 हजार का नुकसान किया, 2 लाख का नुकसान किया, घर में बताया, मूड ऑफ किया, सब कुछ किया, बच्चों को बताया, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 13 साल तक, 13 ईयर्स आपका मेमोरी रहता है। फॉर 13 ईयर्स कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट गाते रहते हैं। और जिस दिन पैसे कमाए तो कभी किसी को पता ही नहीं कि मैं बहुत पैसे कमाए आज। बताते क्या हम? नजर लग जाती ना फिर हमारे है, पूरे साइंस पूरी फिट है, हम किसी को नहीं बताते, बताना नहीं कभी किसी को। अब हमारा साइंस उल्टा चलता है, जितना आप बांटोगे और मिलेगा और मिलेगा। और कभी अपनी जुबान से नहीं बोलना कि पैसे नहीं मेरे पास, बोलना पैसे आने वाले हैं, आते से ही दे दूंगा। पैसे आने वाले हैं ना, आने के बाद दे दूंगा, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल। जुबान को संभालो। बस मुझे कल से आज अच्छा लग रहा है, सपोज इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, डोंट शेयर। किसी को मन हल्का होता है, कितने लोगों का मन हल्का होता है दूसरे लोगों को दुखी करने से? सबको नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं हम। मन हल्का हो, अरे बता ना बेटा, बता, मन हल्का हो जाए। अरे कुछ नहीं होता मन हल्का, उल्टा मैनिफेस्टेशन हो रहा है तुम्हारा, अफर्मेशन हो रहा है, बार बार बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। कितना भी मरने पड़े हो ना, जिस दिन मरने पड़े उस दिन भी बढ़िया कोई 5-25 करोड़ का प्रोग्राम बना देना, बढ़िया मैं नया घर में रहने वाला, मालूम पड़ा कल चले गए, कोई वादा नहीं। ये जिंदगी जीने का तरीका सीख लो। जिसके सपने हैं उसके ही पूरे होंगे, जिसके सपने नहीं है वो कोई पूरा नहीं होने वाला। वो मेहरबानी करके ये क्लास में भी ना आवे, वो जाए अपने गप्पे मारे, गॉसिपिंग करे, एक दूसरे की बुराई करे, जजमेंट करे, कंप्लेंट करे, ब्लेमिंग करे, दुखी होवे, बदला लेवे, अफसोस करे, सब कुछ करे, इस क्लास में नहीं आए, क्योंकि आपका फायदा नहीं होने वाला है। फायदा तो उसका ही होगा जिसके सपने बड़े हैं, जिसको कुछ करना है कि नहीं, मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं पर मुझे एक मैराथन तो भागना है। आपको पता है ना वो किसके थे, एक देयर इज वन लेडी, अभी भागते भागते गई थी वो प्रेसिडेंट के पास अवार्ड लेने को, कुछ तो भी उसका वीडियो आया था उनका। वो अभी कुछ भागने में नंबर 1 आई थी, सम 100 साल की, 90 साल की औरत थी। एनीबडी रिमेंबर सर? अभी थोड़े दिन पहले। आई नो देयर इज वन, वो बेकर्स करके एक कंपनी है, 75 ईयर ओल्ड लेडी, उन्होंने ये देखिए गुरु, यस 75 ईयर ओल्ड लेडी, उन्होंने बेकरी की दुकान चालू की, तो धूम धंधा कमा रही है, स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग हो गया, 3000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया उसका। अब बोलो 75 साल की औरत बिजनेस कर रही है, आपकी उम्र क्या है? आई थिंक कोई है 75 के ऊपर अपने ग्रुप में? अभी आज 100 लोगों में से एनीबडी इज देयर अबाउट 75? है क्या? कोई नहीं है ना? तो आप सब में कैपेसिटी है 2-3 हजार करोड़ का बिजनेस चालू करने की। अभी तो आप यंग हो। It is so simple. Prince Charles has become the king of England at the age of 73. देखिए आज हमारा सब यंग ग्रुप है आज एकदम। We are a group, young group of 100 people, where nobody is above 75. So we are all young. We can do anything. हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोचेंगे कुछ भी कर सकते हैं, because I am an infinite being. I am unstoppable. मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बस अब मुझे पता चल गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सोचूंगा, अच्छे मन से सोचूंगा, अच्छी एनर्जीज को करूंगा, अपने आप को अच्छा बना दूंगा, तो I can do anything. कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या क्या हैं? नंबर 1 फेथ, भरोसा। फेथ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है सपना देखना। सेकंड स्टेप
फेथ, भरोसा, भरोसा। भगवान के पास जाए, हे भगवान एग्जाम में पास कर देना प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान कर तो पाएगा ना? कैन यू डू इट और नॉट? मेरे को नई गाड़ी लेनी है, मेरे को शादी करनी है, कर पाएगा क्या? भी डाउट करते क्या भगवान को? मैं गणपति बापा तुमने लास्ट टाइम भी नहीं किया, तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई औकात नहीं है, तुम नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है, ऐसा बात करते क्या हम? फेथ, मेरे साथ तो अच्छा ही होने वाला है। फेथ, फेथ को डेवलप कर सकते हैं। फेथ इंपॉर्टेंट है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है माफ करना। जब तक आप लोगों को माफ करना नहीं सीखोगे, तब तक आपके फायदे नहीं होंगे। माफी तो देनी पड़ेगी, और दिल से माफ करना। अब माफी, हाँ माफ कर दिया, हाँ माफ कर दिया, ठीक है भैया माफ कर दिया, माफ कर, हाँ माफ कर दिया, माफ। फिर 1 महीने के बाद 15 दिन, साला वो आया था ना बदमाश, चीटर आदमी, चोर है, साला मेरा बहुत नुकसान किया। इसका मतलब ये हो गया, आपने दिल से अभी तक माफ नहीं किया, अभी भी दिल के कोने में कहीं ना कहीं उसके पास नफरत है। किसी भी इंसान ने आपका कितना भी बुरा किया रहेगा, अब मेरा ये कहना है, आपको माफ इसके लिए करना है क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। इट इज सिमिलर टू होल्डिंग द चारकोल, जलता हुआ कोयले को आप अपने हाथ में लेके, साले को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को मारूंगा, मार देगा। अरे भाई तू, तेरा हाथ क्यों जला रहा है? छोड़ इसको, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और हमने तो अच्छे अच्छे चमत्कार होते हुए देखा है, जब हम माफ करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, नफरत चली जाती है। बोल उसका भी भला कर। प्राणिक हीलिंग में कहते हैं, वो भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं, वो भी गलती कर सकता है, मैं भी गलती करता हूं, मैं तुझे माफ करता हूं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अब एक बार करने से नहीं होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तब जाके दिल से। एब्सोल्युटली। आर यू गेटिंग दिस? एंड देयर आर टेक्निक्स। हमारे वर्कशॉप में देयर इज वन लेडी, कैलकाटा की थी कि गुवाहाटी की थी, वो जो फॉरगिवनेस कराती हैं। फॉरगिवनेस हम लोग ही कराते थे सर। हाँ यस यस, सॉरी आई एम सो सॉरी, सरिता जी कराते हैं वो। उन्होंने इतनी बढ़िया कराई है, इतनी बढ़िया कराई है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो माय पॉइंट इज, उसको थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। अगर किसी को फॉरगिवनेस में मतलब किसी को somebody who is not able to come out of the about the experiences, you should take help of Sarita ji. मेमोरीज आपके मसल्स में है, मेमोरीज आर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिमूव द मेमोरीज। मेमोरीज को निकालने का तरीका ये है, देखिए अभी किसी ने भेजा क्वेश्चन, तो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिन करें ग्लास है, ये ग्लास है फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें गंदा पानी है, ठीक है, इसमें गंदा पानी है। गंदा पानी का मतलब नेगेटिव थॉट्स हैं, ओके। अब इसको ठीक करना है तो कैसे करोगे पता है? यू विल हैव टू कीप ऑन एडिंग फ्रेश वाटर। अच्छा पानी को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, धीरे 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 ये जो गंदा पानी है ये इसमें ग्लास में से निकल के बाहर निकलेगा। थोड़ा टाइम के बाद में पूरा पानी साफ हो जाएगा, अच्छा पानी हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी है आपके माइंड के अंदर, दैट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब उसको ठीक करने का सिर्फ 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 एक ही तरीका है, पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस। अफर्मेशन, पॉजिटिव सोचते जाओ। हर किसी में अच्छाई होती है, बुराई होती है। होती है कि नहीं? होती है ना? गर्म पानी, हर एक इंसान में, मेरे में भी बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं, हर किसी में होती है।
भगवान ने आपको एक और गिफ्ट दी है. द गिफ्ट इज ऑफ चॉइस. आप चूज कर सकते हैं कि राजन में अच्छाई देखना या राजन में बुराई देखना. आपके वहां पर भी कोई काम करने वाला है, आपके हस्बैंड में आपको अच्छाई दिख रही है या बुराई दिख रही है, बच्चों में अच्छाई दिख रही है, नहीं नहीं मैं तो माँ हूं ना, मेरी जान तो जलती है, मतलब मैं तो अच्छे के लिए बोल रही हूँ ना. हाँ भाई, तो अच्छे के, पर तरीका गलत है. यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स बाय कंप्लेनिंग, बाय नैगिंग. पीछे पड़ के नहीं होने वाला है. बच्चा नहीं सुनेगा, भाग जाएगा वो. उसकी भी टेक्निक्स है. So keep on telling good things to yourself. Start using power words. Power words मतलब wow, I'm so glad. बोलते हैं ना हम लोग. अब मेरे को wow, I'm so glad. जबरदस्त, तूफान, रॉकेट लग गए, मजा आ गया, too good, superb, जबरदस्त, amazing, excellent, I'm very excited. ले भारी, मराठी में बोलते हैं हम लोग ले भारी. गुजराती में बोलते जलसा पड़ी गया. अमिताभ बच्चन ने अपने घर का नाम जलसा रखा है, पता है? गुजराती नाम है. उसके आजू बाजू में अमिताभ बच्चन जू में रहते बॉम्बे में, तो सब जलसा पड़ी गया, तो उसने अपना नाम, घर का नाम ही जलसा रख दिया है. जलसा पड़ी गया मतलब मजे आ गए. आपके वहां क्या बोलते हैं? गुवाहाटी में क्या बोलते हैं? मतलब बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए तो क्या बोलते हैं? ভাল লাগিছে, खूब ভাল লাগিছে. खूब भाल लागी से. भाल इज अच्छा लगा, भाल लागी से. अब इस वर्ड को पकड़ के हमेशा बोलते रहो. ये होमवर्क है तुम्हारा. एवरीबडी प्लीज टाइप व्हाट इज योर फेवरेट पावर वर्ड. बल्ले बल्ले हो गए. अरे मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए. देखिए आपका माइंड जो है ना, उसको समझ में आ जाता है मैसेज में, अरे बल्ले बल्ले हो गए, वाह जबरदस्त, वाओ, टू गुड. तो व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू इज, आई एम ट्रेनिंग यू मस्त बवाल, मस्त बवाल. ओके, अब आपने प्लीज शेयर, मजा आ गया. ओके, दिल गार्डन हो गया. क्या बात है, मेरा तो आज दिल गार्डन, स्पेक्टेकुलर, सुपर, मजा आ गया. कभी भी ओके, आज के बाद में कभी भी आपको कोई पूछे कैसा है भाई, हाउ आर यू, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मैं क्या बोलता मालूम है? मुझे अगर कभी भी कोई भी कभी भी कहीं पर भी पूछता है हाउ आर यू सर, आई एम सुपर अमेजिंग, आई एम रॉकिंग, मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग माय लाइफ. मेरा आंसर इज इन 2, 4, 7, 10 वर्ड्स डिपेंडिंग. सामने वाला कोई बहुत बड़ा आदमी हुआ तो फिर ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन अगर हो तो मैं तो फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता हूं. यू ऑल्सो डू दिस, क्योंकि जैसे आप बोलोगे वैसे आप बनोगे. सिंपल टेक्निक को यूज कर रहा हूं मैं. समझ में आ गया? ठीक है, आज तो तबीयत ठीक नहीं है, मजा नहीं आ रहा है. गए भैंस पानी में. कहाँ गई भैंस? गई पानी में, गई, कुछ नहीं हो सकता. अरे मैं बोल रहा हूं, कितना भी पेट में दुख रहा है, लोगों को बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. उल्टा जैसे ही आप बोलोगे ना, बहुत अच्छा लग रहा है, कल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, सुबह से अभी आया ना, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. यू थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव, फोकस ऑन गुड थिंग्स इन मी, फोकस ऑन गुड थिंग्स ऑन पीपल अराउंड यू. द नंबर वन रीजन पीपल डू नॉट गेट व्हाट दे वांट. जिंदगी में लोगों को क्यों नहीं मिलता जो चाहते हैं, वो क्यों नहीं मिलता? सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है, because they focus on things that they do not want. अब जो चीज नहीं चाहिए उसी को ऊपर ध्यान देते हैं, ध्यान बढ़ाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं. अब परसों के दिन पे हमारे नागपुर, आई एम इन नागपुर नाउ, मैं नागपुर से अभी कंडक्ट कर रहा हूँ ये वर्कशॉप. नागपुर के टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिशन आया. रस्ते मतलब इतना बड़ा पूरा पेज, खड्डों को लेके, पॉट होल्स, किनके मतलब आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया.
आपके सिटी में कहीं पर भी पॉटहोल्स, मतलब डू यू हैव यू एक्सपीरियंस द न्यूसेंस ऑफ पॉटहोल्स, मतलब जो रास्ते पे खड्डे गिरते हैं उसको पॉटहोल्स कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव एक्सपीरियंस द न्यूसेंस कि भाई रोड पे खड्डे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है खड्डों के कारण, करेक्ट? कौन सा शहर, मतलब विच सिटी आर यू फ्रॉम? सो प्लीज राइट इफ देयर आर potholes in your city. Sir, at times in Guwahati we have to choose कि कौन से pothole में डाले गाड़ी को। कि कौन सा छोटा खड्डा है उसमें डालो, वो बड़ा खड्डा उधर है, छोटा खड्डा बड़ा खड्डा, हम वो ढूंढ रहे हैं अभी। अब हमारी नजर जो है ना, कोलकाता होए, दिल्ली होए, बंबई होए, पूना होए, नागपुर होए, तो कौन से खड्डे में डालूं, मतलब छोटे वाले खड्डे में। आगरा में भी है खड्डे, चलो ओके। तो एक बात तो अच्छी हो गई, चलो मतलब कम से कम जो जहां से है वहां खड्डे हैं, तो ठीक है। फिर हमारे जब घर में लाइट जाती है ना, तो हम पहले बाहर देखते हैं सबकी गई क्या, सबकी गई तो शांत हो जाते हैं। वैसे आप सब शांत हो जाओ, सबके वहां खड्डे हैं, मतलब कोई वादा नहीं, चलो ठीक है। ओके, barely very less. Yes, you guys are blessed because that is a, yes, Vishaka is from Nagpur, so Nagpur में खड्डे हैं। Yes. सर आप जहां जहां नहीं पहुंचे वहां खड्डे हैं अभी। नहीं, सुनो, तो अब क्या हुआ, तो मैं गया वो टाइम्स ऑफ इंडिया की, ही वाज द चीफ एडिटर ऑफ नागपुर टाइम्स ऑफ इंडिया, धर्मपेट में बैठता है, तो उसकी ऑफिस में गया। वो अपनी ऑफिस को शिफ्ट कर रहा था, उसको कुछ भी टाइम नहीं था, मैं चला गया। मैंने बोला सर आप लोग का प्रॉब्लम ये है द प्रेस का कि यू आर गिविंग एनर्जी टू व्हाट यू डू नॉट वांट। जब देखो तब खड्डे के बारे में गालियां लिखते हैं, जब देखो तब कॉन्ट्रैक्टर को गाली देते हैं। सो जितने भी लोग यहाँ है ग्रुप में, अगर उनको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं रोड बनाता हूँ, पर थोड़ा फर्क है उसमें, मैं सीमेंट कंक्रीट रोड बनाता हूँ। और मैंने मेरी जिंदगी में लास्ट 35 ईयर्स से जितने भी सीमेंट रोड बनाए हैं, बंबई होए, पूना, नागपुर, वर्धा, अमरावती, गोहा, अपना जबलपुर, पिंपरी चिंचवड, धामनगांव एंड 2-4 मोर प्लेसेस, कहीं पर भी खड्डा नहीं है मेरे, एक भी रोड पे एक भी खड्डा नहीं है आज तक का। अब मैंने वो प्रेस वाले को बोला, आप जब देखो तब कॉन्ट्रैक्टर को चोर, ऑफिसर ब्यूरोक्रेट चोर, पॉलिटिशियन चोर, ये खड्डे वो खड्डे खड्डे। मैं बोला व्हाट आर यू डूइंग। बहुत मजा आया मुझे उस दिन, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर, चीफ एडिटर वाज लिसनिंग टू मी एंड ही वाज सो मच एंग्रॉस्ड दैट ही अलाउड मी टू स्पीक व्हाट आई वांट। You are focusing your energy on the problem. Why don't you focus on the solution? Solution की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जो देखो तो गड्ढे को गाली, और कॉन्ट्रैक्टर को तो गाली मत देना प्लीज, बिकॉज बाय प्रोफेशन मुझे बहुत बुरा लगता है। The point here is everybody is focusing on the problem. खड्डे पे खड्डा, खड्डा खड्डा, चीटिंग, करप्शन, बैड क्वालिटी, फलाना। Nobody is talking of the solution. मतलब solution है, मेरे पास है solution. Solution simple है। मैंने 40 साल में जितने 35 साल में जितने रोड बनाए, एक भी रोड पे आज भी कोई खड्डा नहीं है। आपकी ऑफिस के सामने वाला रोड, जो नागपुर के जो लोग हैं उनको पता है, धर्मपेट रोड की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम लॉ कॉलेज टू शंकर नगर चौक। वो रोड मैंने 1997 में बनाया था, when नितिन जी गडकरी was the PWD मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। आज भी उस रोड के ऊपर एक भी खड्डा नहीं है। Who is there from Nagpur? Somebody was typing. Anybody from Nagpur today? So my point here is, मैंने नागपुर में कम से कम 30-40 रोड बनाए, बंबई में 50-60 रोड बनाए, पूना में कम से कम 40। Yes, Vishaka is there. So if you can just type, have you seen potholes on the concrete roads? My city is the best in the world. Okay, thank you very much. My point here is, let us focus on the solution. बहुत सिंपल है। आपकी लाइफ में जहां जहां एरियाज में काम नहीं हो रहा, पैसे की एरिया में, रिलेशनशिप की एरिया में, हेल्थ की एरिया में, यू ट्राई टू फोकस। आपने अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं हर महीने 1 लाख रुपया कमाऊं? मैं ऐसा क्या करूं that
आई स्टार्ट रनिंग अ मैराथन रेस, मैं ऐसा क्या करूं कि पालीताना का जो डूंगर है हमारा जैनिज्म का, मैं वो चल के चल सकता हूं। आर यू गेटिंग दिस? आस्क द राइट क्वेश्चन। हम क्वेश्चन ही गलत पूछते हैं। अरे कुछ नहीं हो सकता भाई, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे को तो पता है, मुझे पता है ना, अभी इतने दिनों में नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा। अब तुमने क्वेश्चन, तुमने सोच ही गलत बना दी। नाउ यू आर गिविंग मोर एनर्जी टू द प्रॉब्लम। ट्रेन योर माइंड। इफ somebody has any problem, you can just ask me one question, ask, just share me, तो मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता हूँ। Anybody's got any serious issues? Okay, let us take this. So if you can just unmute yourself if you want. So if you have any question कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, ask a question. तो I will give you, आपने अपने माइंड को क्वेश्चन क्या पूछना है। अंकुर जी का क्वेश्चन था, would you like to ask it yourself, अंकुर जी? You can Okay, unmute. relationship. Now let us take the relationship. Okay, somebody is asking a question, then otherwise I'll take this. Okay, for growth. Okay, very nice. Lot of questions have come. Loan issue payment. Very nice. चलो बढ़िया। मैं सबके आंसर, मैं आपने देखिए। Okay, now let us take the first question from गुरुचरण। उन्होंने ये बोला है कि लोन इश्यू रीपेमेंट, ठीक है। गुरुचरण जी, if you can come on, मतलब if you can talk to me, तो I can just help you more better. Are you able to talk? Otherwise, okay, fine. So let me take it. Thank you, sir. Thank you. I was with a patient. Thank you. Yes, sir. Okay, अभी आपका प्रॉब्लम क्या है वो बताएं। Sir, actually, मैंने अपने शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में, very short, please. Very short. I had spent amount from my credit card for my family, and it became a huge amount right now. So I have to repay it. Perfect, perfect, got it. चलो, that's simple. Let us make it very simple. इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर काफी खर्चा कर दिया है, काफी कर्जा हो गया है। ओके, अब आपने अपने आप को एक ही क्वेश्चन पूछना, मैं ऐसा क्या करूं that I can earn 5 lakh rupees. For example, आपका कर्जा हो गया है लाख रुपए का, 2 लाख का। So don't think लाख 2 लाख, जितना मांगोगे उतना आपको। And remember one thing, it is a super power. ये जो आपका माइंड है ना, उसको सब पता है। He will give you the answers. If you have attended my other sessions, I take time to make you understand. But now to start with, you just ask yourself, मैं ऐसा क्या करूं कि I earn 2 lakh rupees, मैं ऐसा क्या करूं? And the best time, okay, now I will share you the technique. मैं आपको एक और टेक्निक सिखा देता हूं। The best time is when you are in a sleepy, drowsy state. जब आप रात को सो जाते हो पलंग के ऊपर, थोड़ी नींद में आ गए ना, तभी आपने अपने आप को पूछना, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 2 लाख रुपया कमा। Next day morning, you will get the answer. Your subconscious mind will answer you, or it will give you hints. आपको hints मिलेंगे, और इसको आप प्रैक्टिस करते जाएं। आप बोलोगे नहीं मिला, नहीं मिला। देखिए, ये आपके अंदर आत्मा की आवाजें आती हैं, and this has been written by the books that I have read, that जो geniuses रहते हैं, they get all the answers from their intuitions, sixth sense। आंसर आता है, फट से आंसर आता है, या ऐसा आपको कुछ दिखेगा, या आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाएगा। This is the technique, very powerful technique. Ask the right question. सोने के टाइम पे बढ़िया शांति से थोड़ा ग्रेटिट्यूड कर लेना अपने पेरेंट्स का, अपनी बॉडी का, अपने शहर का, टीवी का, पलंग का, बीवी का, बच्चों का, फैमिली का, सबका थोड़ा कर लेना, और फिर ये क्वेश्चन पूछना। वो करने से क्या होता है, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो ना, जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, यू कम इनटू पॉजिटिव एनर्जीज। आपकी एनर्जीज जो रहती है ना बॉडी की, थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो अच्छी माइंड से फिर आप लास्ट में, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं 2 लाख रुपया कमा दूं। ट्रस्ट मी, यू विल गेट द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम श्वेता अग्रवाल। फॉर ग्रोथ, मेरी बढ़ोतरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टर्नओवर अभी 1 करोड़ का है, अब आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है बिजनेस में। आपने ये पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरी बरकत हो जाए, मेरी ग्रोथ हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं दैट आई बिकम सो हैप्पी। Relationship issue. Now you might have relationship with your
husband, with your mother-in-law. Correct? देखिए रिलेशनशिप को लेके अब मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज focus on the good qualities of your husband. Focus only on the good qualities of your wife. Be grateful to him. मैं आपको बता रहा हूं, that is the only solution. Focus on good thing. कुछ नहीं है, हस्बैंड वाइफ हैं, आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं। अमेरिका में होते तो शायद दूसरी तीसरी शादी तक पहुंच जाते थे। थोड़े हिंदुस्तान में कम होती है दूसरी तीसरी शादियां, होती है मतलब कम होती है, एडजस्टमेंट चलता है हमारे यहाँ। अब जब एडजस्ट करके जीना है तो माइट एज वेल फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज ऑफ योर पार्टनर, फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज ऑफ योर स्पाउस, फोकस ऑन द गुड क्वालिटी ऑफ द चिल्ड्रंस। वेरी सिंपल। एंड बी ग्रेटफुल। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोई बुरा नहीं कर सकता, आपके साथ तो बुरा हो भी नहीं सकता है। अब हमने प्रकृति के नियम को समझा ही नहीं, इसको गाली देते, इसको कंप्लेन करते, उसको जज करते, उस मतलब क्या कर देते हमको समझ में नहीं आ रहा है। फुल टाइम टेंशन में, हैप्पीनेस तो है ही नहीं। सिखाया ही नहीं किसी ने कि भाई अगर आपको अगर जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी हैप्पी। क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुखी आत्मा को कोई कुछ नहीं देता। राइट? फॉर एग्जाम्पल, माँ भी अपने बच्चे, 2 बच्चे रहते हैं, अश्विन मैम का फेवरेट एग्जाम्पल है। 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा जो है उसको कितना भी कुछ दिया, नहीं मम्मी ये अच्छा नहीं है, वो बुरा है, उससे तो ये बेटर है, ये है, हैप्पी ही नहीं होता। जैसे कि फैमिली हॉलीडे पे गई तो होटल में गए तो एक बच्चा बोलता है मम्मी पलंग अच्छा नहीं, ये तो रूम कितना गंदा है, कितना छोटा है, ये तो बढ़िया नहीं है ना, उससे तो फलाना होटल अच्छा था। और उसी माँ का दूसरा बेटा जो है वो बहुत तारीफ करता है, मम्मी कितना बढ़िया पलंग है, देखो जंप मार रहा हूं मैं, कितनी बढ़िया होटल है, वाओ इट इज सो नाइस, कितना मजा आ रहा है। माँ को भी अपना वो बच्चा प्यारा लगेगा। तो आप भी भगवान के बच्चे हैं, जितनी ज्यादा कंप्लेन, अरे कम से कम आपके पास पति तो है, बच्चे तो हैं, वाइफ तो है, फैमिली तो है, घर तो है, एसी चालू है, लैपटॉप चालू है, आंखों से दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, इतने सुंदर दिख रहे हो, हाथ पांव काम कर रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, वर्कशॉप में बैठे हो, उसका कोई आनंद नहीं है। और जो नहीं है उसके लिए आप दुखी हो गए। अब कैसे चलेगा आपका? नहीं चल सकता ना। जो है उसके मजे नहीं है और जो नहीं है उसका दुख है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि सर मेरा वो कस्टमर है, वो पैसे नहीं दे रहा है, मेरा कितने रुपए, बोले लाख रुपया है, साल भर से घुमा रहा है, ये वो फला। अब वो इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे देता है। मैं बोला भाई बाकी तेरा घर तो चल रहा है? तो बोला हाँ चल रहा है। खाना खाना खाया? बोला खाया। कपड़े से तो ठीक ठाक दिख रहा है। अब भगवान ने तुझे वो लाख रुपया नहीं दिया पर इतनी और जगह से रोज पैसे दे रहा है, उसके तेरे को मजे नहीं आ रहे, पर वो लाख रुपया दुखी, छोड़ूंगा नहीं साले को, जेल में चला जाऊंगा, मर्डर कर दूंगा। अरे भाई तू क्यों कर रहा है यार? भगवान तेरे को 4 जगह से और दे रहा है ना, भूखा तो नहीं रख रहा है ना, उसके मजे नहीं ले रहा है तू। आर यू गेटिंग दिस? We are focusing on what we don't want, जो नहीं चाहिए उसको एनर्जी देते रहते हैं। तो धीरे धीरे होता क्या है, जो यहाँ सब पैसे जो आ रहे हैं ना, वो भी आने बंद हो जाते हैं, सब इसकी वजह से। हाँ ले मजे ले। क्या मजे लिए तूने कंप्लेन करके? जो था वो भी गवा दिया। अब कौन समझाए तुझे? पर रॉन्ग को रॉन्ग तो प्रूव करना ही चाहिए। करो फिर, उस अपने साइड में, अपने गए भाड़ में, पहले मैं उसको रॉन्ग प्रूव करूंगा। देखो पर रॉन्ग को तो रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा ना मिस्टर ऐसे।
आपने कोई ठेका लेके नहीं रखा लोगों को राइट रॉन्ग प्रूव करने का। आपने इसके लिए आपको लग रहा है क्योंकि आपके सपने बड़े नहीं है, इसके लिए लोगों को रॉन्ग प्रूव करने जा रहे हो। मैं तो आपको ये बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, सपने बड़े देखो, सपने को ध्यान दो, सपने बड़े हो जाएंगे तो खत्म। फिर ये जर्नी इस धरती पे आप जो आए हो ना, आगे की जर्नी चालू करो, राइट रॉन्ग में मत पड़ो। आर यू गेटिंग दिस? रॉन्ग को तो रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा। साले को मेरा इंसल्ट किया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सुनाऊंगा मैं। अरे तू क्या उखाड़ लेगा यार। जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, स्मॉल पीपल टेक रिवेंज, याद रखना। छोटे लोग हमेशा बदला लेते हैं, बड़े लोग माफ करते हैं, और इंटेलिजेंट लोग इग्नोर करते हैं। इग्नोर करो, तुमको गाली दे दी क्या फर्क पड़ने वाला है यार। मैसिव रिवेंज इज द बेस्ट रिवेंज। अगर किसी से बदला लेना है ना तो लो, ऐसा बदला लो ना। मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ये आप लिख लेना। किसी से भी बदला लेना है ना, अपने आप को इतना बुलंद कर डालो, इतना कुछ तो भी कर दो अपनी जिंदगी में, हो गया आपका बदला। जाओ, इसने ये बोला न, उसने वो बोला न। अरे क्या गली में रास्ते पे जाओगे, 10 कुत्ते भौंकते रहेंगे, भाव 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 भाव, तो क्या 10 कुत्तों को भाव 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 सबको भाव करते रहोगे क्या, रॉन्ग प्रूव कर करके? वो कुत्ते का नाम है, वो अपना नहीं है। अपना काम तो सपने देखना है और सपनों को पूरा करना है। ये सब छोटी बातों वाली, छोटी चीजों में मत पड़ो, मत उलझ जाओ ये सब चीजों में। किसी ने आपका कितना भी बड़ा से बड़ा इंसल्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। Are you getting this? The problem is we do not have big dreams. कोई ओलंपिक रेस में भागो, वहां मुझे गोल्ड मेडल लाना है। कोई इंडिया लेवल को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। किसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है। हमारे ग्रुप में से एक पार्टिसिपेंट, एवरीबडी नोज, नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज आई हैव बीन सेड नॉट टू से, शी वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई नॉट? सपना तो देखा ना किसी ने। मैंने भी देखे बड़े बड़े सपने, और क्यों ना देखूं, भगवान का बच्चा हूं यार। आई कैन डू एनीथिंग। जो मैं सोचूंगा मैं कर सकता हूं। एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर अभी हमारा, सो वी हैव जस्ट 5 o'clock नाउ, सो नाउ लेट मी शेयर विथ यू, जस्ट समराइज सम फ्यू थिंग्स। देखिए, यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशंस। आपको अपने आप को हैप्पी रखना है। हैप्पीनेस बिगिंस विद सेल्फ लव। मुझे किसी ने भी सेल्फ लव करना नहीं सिखाया। मैं कभी भी अपने खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्चा कर सकता था। मैं कभी किसी को टिप नहीं दे सकता था। मैं कभी किसी का अच्छा नहीं देख सकता था। और जब मैंने सपने बड़े देखे और जब समझ में आया कि भाई आई हैव टू स्टार्ट लविंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मनी ऑन माई सेल्फ। मैं अब ऐसे खर्चा करता हूँ, ऐसे खर्चे करता हूँ और मजे से करता हूँ। आई कीप ऑन ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। साल में 2 से 3 ट्रिप फॉरेन करती है। इंडिया में घूमना मतलब मेरे 5, मतलब साल भर की 7-8 ट्रिप हो जाती है या 15 ट्रिप हो जाती है। एंड आई स्टे इन द बेस्ट ऑफ द होटल्स। खाना भी बढ़िया। पहले तो कोई चल अपना क्या पेट भर जाता है। Now we try to see to it that I go to the best of the restaurants, I eat the best of the food, wear the best of the clothes, because I love myself. पहले मुझे गिल्टी महसूस होता था। How many of you all feel guilty जब हम खुद पे खर्चा करते हैं? तो मुझे भी होता था। आप में से किसी को होता है? Yes, you feel guilty. अरे क्या जरूरत थी यार इतना, मैं यार, हाँ यार, क्या अपना सादा होटल में रह जाते 2000-1500 में तो काम हो जाता था। पर जब समझ में आया दैट इज बिकॉज आई डोंट लव माई सेल्फ। जब रात को बच्चा आता है 12 बजे 11 बजे, मम्मी भूख लगी है, मम्मी बढ़िया उसको जो मनपसंद खाना है वो उसको बना के देती है ना। पर अगर मम्मी को भूख लगी तो मम्मी क्या बोलती, मेरा कुत्ते ठीक है भूख लगी है पर ठीक है, मेरा कुत्ते पानी पी के मेरा चल जाता, कुछ नहीं फर्क नहीं।
We just don't, nobody taught us to love ourselves. आज 100 लोग बैठे हैं वर्कशॉप में, हमारे सबके पास इतने पैसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ये मेरा घर, I have got now 6 houses, 6-7 houses. नागपुर में घर, मेरे 2 घर नागपुर में है, 4 घर बंबई में है, सेम बिल्डिंग में, पूना में घर है, लॉस एंजलिस में मेरा बहुत बड़ा, मतलब आई हैव अ 4 acre हाउस इन लॉस एंजलिस। आई हैव गॉट ऑफिसेज एवरीवेयर। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे असेट्स, मेरा खर्चा कितना है? आप अपना हिसाब लगाएं, आपका खर्चा कितना है साल भर का? लेट अस से ₹1,00,000 महीने का, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया महीने का, करेक्ट? खुद का पर्सनल, जो भी खाना पीना, पिक्चर देखना। कल मैं पिक्चर देख के आया, वो कौन सा, आलिया भट्ट का, ब्रह्मास्त्र सर, ब्रह्मास्त्र। मुझे आज किसी ने पूछा कैसा, मतलब मुझे मालूम ही नहीं क्या था पिक्चर में, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आया। इट वाज लाइक अ बम्पर मूवी। एनीवे, माय पॉइंट हियर इज, खर्चा मैं कितना करूंगा? 5 लाख रुपया महीने का, 50 लाख रुपया साल का। अब मेरे कितने 40 साल रह गए? 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ की तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है। आप भी अपना हिसाब निकालें भाई, आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा हैं, और गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, आपका जो घर है उसको आप रिवर्स मॉर्गेज करा सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज का मतलब है कि आपने अगर बैंक को दे दिया तो डिपेंडिंग आपकी उम्र और आपका घर का वैल्यूएशन से वो आपको हर महीने पैसे देंगे और आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे। आपके मरने के बाद में आपका बच्चे से मांगेंगे, अगर बच्चा दे सका पैसे तो पैसे चुका देगा, नहीं तो बैंक आपका घर बेच के बाकी के पैसे आपको बच्चे को दे देगा। अब आपकी कोई जवाबदारी नहीं है, आपने बच्चे को पैदा किया, खत्म। 19 साल 20 साल किया, खत्म। शादी करा दी, वो भी बोनस है, खत्म। फिर आपकी कैपेसिटी रही तो सब उनको ही मिलने वाला है। पर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, एंजॉय योरसेल्फ। फॉरेन घूम के आए, डिज्नीलैंड को तो पक्का, जितने लोग नहीं गए ना, सपना बना देना अपना, एक डिज्नीलैंड जरूर जाना। गो टू डिज्नीलैंड। फ्लोरिडा वाले डिज्नीलैंड में जाना सबसे बढ़िया है, अमेरिका में है, लॉस एंजलिस में है, हांगकांग में है, एंड आई थिंक पेरिस में है। अरे मेरी तो 70-65 साल की उम्र हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना एक बार तो, कोई फर्क नहीं। बहुत पैसे है तुम्हारे पास, आपको अंदाजा नहीं, आपके हाथ में जो सोने का है कड़ा, बंगड़ी, बैंगल्स, जो हाथ में अंगूठी, बहुत पैसे है आपके पास। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी नहीं लेके जाने वाले ऊपर, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। थोड़े मजे ले लो, एंजॉय योरसेल्फ, बिकॉज लाइफ इज हैप्पीनेस। जो आदमी हैप्पी रहेगा ना, उसी को सब कुछ मिलेगा। एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू बी ग्रेटफुल। जो इंसान हैप्पी है, जो इंसान ग्रेटफुल रहता है, उसको सब कुछ देगा। और थैंक यू बोलना, थैंक यू समझना, हम आपको 1 महीने के वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं थैंक यू कैसे बोलना, कैसे प्रैक्टिस करना, और ये सब हम फ्री में कर रहे हैं। सो प्लीज टेक द बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो ट्रेन किए हुए बच्चे हैं, दे विल ऑल टीच यू हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी ग्रेटफुल, हाउ टू अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। आपके बड़े सपने कैसे पूरे करना। कोई बड़ी बात नहीं, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जावे, हमारे ऊपर कुछ नहीं। डॉक्टर जो चाहे बोल सकता है, पर हमारे साथ वही होगा जो हम सोचते हैं। अगर डॉक्टर ने जो कुछ बोल दिया और आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो वैसा ही होगा। Are you getting this? My real uncle, he has been detected by cancer. डॉक्टर ने उनको ये बोला
कि 50% दवाइयाँ ठीक करेगी और 50% आपका दिमाग। तो मैंने मेरे अंकल को बोला, दिमाग का डॉक्टर मैं हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। द पावर इज इन योर माइंड, इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबसे बड़ी शक्ति, न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा शक्ति इस दिमाग में है, इस दिमाग में। इसको अगर आपको यूज करना नहीं आया तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। और मेहरबानी करके उसको मिसयूज तो करना मत। इस शक्ति को मिसयूज कैसे करते हैं हम? नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बोल के, दे गवर्नमेंट को गाली, खड्डों को गाली, रास्ते को गाली, इनकम टैक्स को गाली, जो देखो साला सब अच्छे लोग हैं। डॉक्टर को तो गाली पक्का देते हैं। कितने लोगों को लगता है डॉक्टर ज्यादा चार्ज करता है? लगता है ना, फालतू के टेस्टिंग कराता है, सब कमीशन है, मुझे मालूम है, सब कमीशन चलता है, धंधा लगा के बैठा है। अरे भाई, अगर इस धरती पे कोई आपकी जान बचा सकता है तो वो सिर्फ डॉक्टर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर को तो जितना मांगे ना ऐसा प्रेम से पैसे देना। अरे कुछ फायदा नहीं, रोज बुलाता है, रोज 3000 5000, कोई फायदा नहीं हुआ। 25,000 रुपए तो दे चुका हूं। अगर आपके नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी तो आप अच्छे नहीं होंगे। अरे डॉक्टर तो भगवान का रूप है इस धरती पे। जब भी उनको पैसे दो ना, प्रेम से दो, गुड फीलिंग्स के साथ देना। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको मिला तुम। अब मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगा। अब दवाई खाते हैं, 6 महीने हो गए दवाई, 40,000 रुपए की दवाई, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, कुछ फायदा नहीं लगा। अब माथा खराब होगा तुम्हारा, मतलब तुम ठीक हो ही नहीं सकते। हम यही तो सिखा रहे हैं भाई। जब भी दवाई लो ये सोच के लो, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, कल से बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे में बहुत ताकत आ रही है, आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। ऑलवेज, जब भी मेडिसिन, भले कुछ नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, दिमाग में आने ही मत देना कि कुछ नहीं हो रहा है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल आई वांट टू शेयर। सो thank you so much, thank you, and I would once again remind everyone, we are all born to live an amazing life। देखिए, आप एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। खाली थोड़ी टेक्निक्स को समझ लो, माइंड को ठीक कर दो। सरिता जी, शालिनी जी, विवेक जी, देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू। सब लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, जस्ट सो दैट, क्योंकि आप भी भगवान के बच्चे हो, हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक अद्भुत जिंदगी जीने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड यू कैन डू, यू कैन क्रिएट व्हाट यू वांट। आपको अगर 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, आप बना सकते हैं। और मैं आपको इतनी सारी गुड न्यूज देने वाला हूं, मैं इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे जैसे जैसे सपने पूरे होंगे, आई विल शेयर यू आफ्टरवर्ड्स। आई एम वर्किंग ऑन बाइंग सम कंपनीज वर्थ 200 करोड़। अब कहां से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, मुझे फेथ है कि वो होगा, and I'm very near to it. Thank you so much. So this is all, Sarita ji. So Yes. as you take it forward, if there is Should we take any questions, sir? your wish, okay, we can take it for next 10 minutes, 10-15 minutes. Any Yes, 10 minutes we can take, sir. So Ashish, you would like to ask your own question? How to get focus back? I have tried but failed to maintain focus continuously on my dreams. ओके, अभी आप जिसका भी फोकस नहीं आ रहा है ना, देखिए आपका जो माइंड है ना वो भटकता रहता है। आपके माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं एवरी डे। ओके, नाउ यू आर नॉट एबल टू फोकस, क्योंकि भटकता रहता है, नेगेटिविटी ये वो, बिकॉज यू हैव नॉट बीन ट्रेन। दिस इज कॉल्ड एज अ मंकी माइंड। आपके माइंड को कहते हैं जंप मारता रहता है यहाँ वहां यहाँ। और क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो पीछे रहता है यहाँ पर, उसमें सब नेगेटिव डेटा फिल्टअप है, तो हमको नेगेटिव विचार आते रहते हैं, राइट। द ओनली वे टू improve your
focus is by meditation. Only meditation. मैं customers को क्या, sorry sir. So now let me make everybody do one meditation. एक बढ़िया meditation कराता हूँ. देखो simple है. Meditation का मतलब ये नहीं होता है, मतलब ये तो होता ही है, ध्यान में बैठो, ये करो, रूम बंद करके ये वो. अब मैं आपको simple meditation, आप अभी बैठे हो ना, चलो 1 सेकंड में meditation करते हैं. मैं I'll teach you how. Just sit down, close your eyes, focus on your breathing. Inhale. लंबी गहरी सांस ले, सांसों पे ध्यान रखें. Feel the temperature of your breath. आपका जो सांस है उसका टेम्परेचर पे ध्यान दे. Exhale. सांसें बाहर निकालें. One more time. Inhale. Exhale. Focus on your breathing. Thank you. Open your eyes. Open your eyes. ये हो गया आपका मेडिटेशन. बस अब जो है इसको बढ़ाते जाओ. आप कभी भी बैठे हैं ना, समझो कुछ काम नहीं है, बैठ जाना. एक सांस के लिए भी आपने मेडिटेशन कर दिया, खत्म. क्या कर रहे हैं? मेडिटेशन कर रहा हूं. कितने सेकंड का? 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, नो प्रॉब्लम. एंड नाउ कीप ऑन इंक्रीजिंग. अब इसको बढ़ाते जाओ. फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. अब करते करते आपको शायद कोई दूसरा ख्याल आ जाएगा. इट इज ओके. जब भी वापस याद आ जावे, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड विथ अ स्माइल ऑन योर फेस. चेहरा जो है ना, स्माइलिंग रखना. बस हो गया वो. इसको आप करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ. आधा घंटा, 1 आवर, 40 मिनट, देन फिर बढ़ते जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड. दैट इज ओनली वन वे. दूसरा, सेकंड वे ऑफ फोकसिंग इज अफर्मेशन. रिपीट योरसेल्फ. देखो कितने लोग हैं. ओके, नाउ लेट मी शेयर विथ यू वन. जो हरे कृष्णा वाले कोई हैं, उनको चैंटिंग कराते हैं. Is there anybody from Hare Krishna? तो वो चैंटिंग करते हैं. मालूम है, वो एक थैली पहनते हैं हाथ में और करते रहते चैंटिंग. You know why? Because they want to focus their mind. एक मंत्र बोलते रहते हैं. एक मेरा दोस्त था, मतलब है, सॉरी. I stay on the 13th floor in Bombay. He stays on the 14th floor. Now उसका मैं रियल बहुत बढ़िया एग्जांपल है. सुरील जवेरी 14th फ्लोर पे रहता था. 2019 में उसको किसी ने बुद्धिज्म के बारे में, चैंटिंग के बारे में समझाया. नम्यो रेंगे क्यो. ये आप टाइपिंग करके भेज सकते हैं, या तो आई विल सेंड यू दैट वन लिंक आल्सो. नम्यो रेंगे क्यो. नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो. This is a Japanese Buddhism में. Anybody from Namyo? Yeah, Namyo Renge Kyo. Yes, thank you. तो वो उन्होंने चैंटिंग शुरू किया. Now मेरे ऊपर के फ्लैट में 2 बेडरूम के घर में उसके पेरेंट्स, उसका ब्रदर एंड उसकी वाइफ, वो उसकी वाइफ, कितने 6 लोग, और 2 बच्चे, 8 लोग, और एक सर्वेंट, 9 लोग. 9 people staying in the 2-bedroom house for so many years, and he was told to write down what he wants. He wrote in the month of April 2020, I will stay in my new 3-bedroom house. And he kept on doing chanting, 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 chanting. रोज 1 घंटा करता है. You will not believe. This is real story. In the month of April, उसके फादर आउट ऑफ नथिंग, आउट सल के, सुरील एक काम कर, मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूं, तू एक काम कर, तू नया फ्लैट ले ले, अभी ये घर छोटा लग रहा है. For 40 years they were living in the same house. He wrote it down and chanting, focusing his thoughts.
and he got it in the month of April. बोलते राजन मैंने नए घर के पैसे अप्रैल महीने में भरे, आफ्टर 1.5-2 years. मुझे याद भी नहीं था, बोलता जब थोड़े दिन के बाद में जब वो बुक मेरे हाथ में आई तब मैंने देखा, अरे ये तो मैंने लिखा हुआ था. And now 2020 December he was detected with cancer. Suril Javeri, my very good friend, my neighbor, and trust me, मैंने कभी उसके मुंह से नेगेटिव बात सुनी नहीं. उसकी वजह एक थी, he could control his mind. He was doing chanting. चैंटिंग से होता क्या है, आदमी डिस्टर्ब नहीं होता. चैंटिंग माइंड को एक काम दे दिया है. वॉलंटरीली यू आर गिविंग सम वर्क टू योर माइंड. नम ये रहेंगे क्यों, नम ये रहेंगे क्यों. यू कैन डू. हरे रामा कृष्णा वाले भी कुछ करते हैं चैंटिंग अपना, मालूम है ना, हाथ में एक थैली लगाते वो करते रहते हैं. मालूम है क्यों? क्योंकि दे वांट देयर थॉट्स टू बी फोकस. यहीं वही भटकने नहीं देना है. So this is all about focus. Okay, one more question. Thank you. You are on mute. Sarita ji, you are on Yes. mute. Invested money with builder, how to get it back? आपको जो है बिल्डर को पैसे वापस लाने हैं, बिल्डर को पैसे जो वापस लाने हैं, आपको उसका ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा और कुछ नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, फेथ. मेरे पैसे वापस आएंगे, मेरे पैसे वापस देंगे, मेरे पैसे तो. फेथ 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 एंड ग्रैटिट्यूड. ये आपके पास ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकते हो आप. बाय द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आपको अंदाजा ही नहीं है. यू कैन क्रिएट अबंडेंस. एंड आपने यूनिवर्स से, उस बिल्डर से पैसे के बारे में जितना ज्यादा करोगे उससे अच्छा ये है. माय सजेशन टू यू इज क्रिएट अबंडेंस इन द एरिया ऑफ वेल्थ. वेदर वो बिल्डर के पास से आवे, या कोई जमीन के भाव 4 गुना हो जावे, या कोई लॉटरी लग जावे, या कोई आपको कहीं और से मिल जावे. पैसे तो आने वाले हैं. मेरे पैसे तो कहीं डूबते ही नहीं है. मेक इट योर बिलीफ. मेरे पैसे कोई नहीं, मेरे पैसे तो आने वाले. आज नहीं तो कल मेरा तो फायदा, मेरा नुकसान कोई नहीं कर सकता. मेक इट योर बिलीफ. बार बार बोलते जाओ. एंड बी ग्रेटफुल टू द बिल्डर. थैंक यू. अरे क्या पता वो जो आपने 10, 20, 25 लाख रुपया किसको दिए कहीं और चले जाते थे तो कोई बड़ा खड्डा हो जाता था, क्या पता. सी दीज आर ऑल माइंड टेक्निक्स. तो यही है. फेथ, ग्रैटिट्यूड, और कुछ नहीं है. मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, मेरे बिल्डर को पैसे दिए वापस आ जाएंगे, मेरे बिल्डर. इसका मतलब है आप चिंता कर रहे हो. खत्म. तो भी नहीं मिलेगा. चिंता से कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द नेगेटिव फीलिंग्स. गौतम बुद्ध को याद करना, जो आपकी फीलिंग्स है उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो. तो डर है, चिंता है, डाउट है. डाउट है तो पक्का नहीं आने वाला है. Okay, thank you very much. Yes, sir. So- Thank you so much, sir. Ma'am, I'd like to close today with a small prayer, please. I'll take the liberty today. Thank you. Please. Could you close your eyes? With a deep gratitude, जो भी ये energy आपका connection weak. We can't hear you, Vivek ji. We just tune into the energies of gratitude. Okay, thank you. See you all tomorrow, right? Yes. Okay, tomorrow same time, 4 o'clock, and keep on creating
abundance in your life. Thank you so much. Thank you. See you all tomorrow. Amazing Thank you session. so much. Thank you so Awesome. much. Thank God you. Thank you bless. so much, sir. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. The recording is there on Facebook. It will also be there on our Weave the Magic. I will post it there too. It is there Amen. already on the link that we gave. Thank you so much. Please do join in tomorrow. See you tomorrow at 4 o'clock for the last session. Thank you. अंदर नहीं रखना है। पकड़े रखो।